अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नासु बिल क़िस्त। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। ब्रदरान इस्लाम, मुअज़्ज़िज़ बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये सूरह हदीद की एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत फरमाई। सूरह हदीद is the 57th surah of the Quran and begins with सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। तारीफ उस खुदा की है जो जमीन और आसमान का बनाने वाला है। जो कुछ दुनिया में है, आसमानों में है, वो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रही है। Everything is for Allah subhanahu wa ta'ala. It begins there, these surahs, and continue 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 of the Quran. Ends with Surah Taghabun. ये सारे जो सूरतें हैं, ये सारे all these chapters say युसब्बिहु लिल्लाहि, सब्बहा लिल्लाहि, इसी से स्टार्ट होते हैं। सब्बहा युसब्बिहु, इसीलिए इन सूरतों को मुसब्बिहात कहला जाता है together. And these are amazing surahs for you and I today, and we need to read them and understand what this is all about. It continuously hits you hard and says, अरे लोगों जो ईमान लाए हो, क्या बात है कि तुमको ईमान नहीं है? अरे लोगों जो ईमान लाए हो, वो बातें करो जो तुम कहते हो। अरे लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह के तक़वा इख्तियार करो और रसूल पर ईमान लाओ। मुसलमानों से कहा जा रहा है, याद करो तुम्हारे वादे को, याद करो तुम्हारे ईमान को, याद करो तुम्हारे रसूल पर ईमान को, याद करो तुम्हारे तक़वे को। क्यों आप भूल गए हैं? मुनाफिकुन जैसा कैसे मामला आप कर रहे हैं? Why are you behaving like this? It's a very, very important thing and gives you space for introspection, to study, understand Allah Ta'ala हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। दोस्तों, मैं और आप मुसलमान हैं, और मुसलमान का मतलब बुनियादी तौर पर यह कि हमारे बुनियादी तीन ईमानियात है। हमारे अकायद में तीन चीजें हैं। We all have three fundamental beliefs. Number one, तौहीद। तौहीद पर ईमान, रिसालत पर ईमान और आखिरत पर ईमान, जिंदगी बाद मौत पर ईमान। We believe in these three fundamental things that can be expanded to a very, very large thing. But today, looking at the state of the Muslim community, it becomes very important to talk about one particular thing that I have brought to you today, and that is Risalat par Iman ka matlab kya? What does it mean to believe in the Prophet sallallahu alaihi wasallam? One of the fundamental things that Muslims have forgotten the world over, and we need to be reminded, is something called the prophetic mission. बेसत्ते रसूल का मकसद क्या था? Why was the Prophet sallallahu alaihi wasallam or any other prophet sent to this world? क्यों आए थे? क्या बताने आए थे? अल्लाह ताला के पास कोई वाईफाई नहीं था क्या कुरान भेजने के लिए? आपको सोचने की जरूरत है। He could have done some skywriting. मच्छी के ऊपर कुरान लिख के आपको भेज देता। कुरान में ये बातें हैं कि लोग कहते हैं क्यों ना ऊपर से ऐसा किताब नाजिल होती हमारे लिए, कुरान। तब हम मान लेते कि अल्लाह ताला इसका खादिर नहीं है, खुदरत नहीं रखता अल्लाह ताला, यकीनन रखता है। But the prophetic mission needs to be understood. And the verse that I just read from Surah
57, Surah Hadid, verse number 25, it says, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. This entire system of sending prophets, sending the books, sending the Sharia, sending the balance, इसका मतलब क्या है? क्यों अल्लाह ने भेजा मालूम है आपको? सारे रसूलों को लियक़ूम अन्नास बिलक़िस्त, ताकि इंसान अपनी जिंदगियों में, अपने सोसाइटीज में इंसाफ पर कायम हो जाए। इस चीज को बहुत अच्छी तरह हमको समझना चाहिए। द प्रॉफिट वाज सेंट and his entire life was spent with a mission. एक मिशन था। वो मिशन क्या था? To establish justice on earth, to establish peace on earth, to establish equity on earth. And this establishment of justice and peace and equity is impossible until you defeat the Abu Jahals, until you defeat the Abu Lahabs, until you defeat the Utbas and the Shebas, until you defeat all the fighters for evil that come up in front of you. The prophets had been sent to clean up the swamp. जो गंदी सियासत है, जो गंदी बिजनेस है, जो गंदी सोसाइटी है, इंसान इंसान पर जुल्म कर रहा है। सियासत की हालत देखिए, बिजनेस की हालत देखिए, घरों की हालत देखिए, रोड की हालत देखिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इब्तिदाई दौर में यह बताया था कि यह ख्वाब बताया था, अरे खब्बाब ये मेरा काम चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? कि यह ख्वाब दिखाया था कि ये बुढ़िया खातून सना से हदर मौत तक अकेली पैसों के साथ किसी के डर के बगैर वो अकेली ड्राइव कर सकेगी। A woman can travel without anybody's fear, and this is my work. I don't want highway robbers. I don't want bad people to look at her. I don't want anything to scare her. बुरे लोग दब जाएं, evil forces दब जाएं, हक कायम हो जाए, इंसाफ कायम हो जाए, इस्लाम कायम हो जाए, शरीयत लॉ बन जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? And therefore, to end the mischief, the hatred that gets spewed out of people, the fighting, the bombs, the hegemony of the gangsters, इसको खत्म करना है। मुसलमानों को एक पूरी जिम्मेदारी के साथ दुनिया में भेजा था। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का मतलब यह नहीं है, it does not mean to accept him as a prophet. It does not mean to accept him as the best of human beings. It is not just to accept him as a teacher. बल्कि कुरान मजीद में बार बार यह बात आती है, फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबऊहु। खाली ईमान लाना नहीं है, फआमनू बिही नहीं है, अल्लाह रसूल पर ईमान लाना नहीं है। वत्तबऊहु, उसको फॉलो करो, वअज़्ज़रूहु, उसको स्ट्रेंथन करो, उसको एम्पावर करो, अपनी जान दो, अपना पैसा दो, अपनी स्किल्स दो और इस मूवमेंट को स्ट्रेंथन करो, स्ट्रांग बनाओ, एक हो जाओ, उसके पीछे चलो, उसकी मदद करो और उसको दुनिया में जिता के छोड़ो। Make him win this game. Don't let the Abu Jahl win. Don't let Abu Lahab win. Don't let Utba and Sheba win. अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लीडरशिप में जिताना चाहते हैं तुम्हें, बदर में ले जाना चाहते हैं, ओहद में ले जाना चाहते हैं, हुनैन में ले जाना चाहते हैं, तबूक में ले जाना चाहते हैं। तैयार है क्या? ये सवाल हम इसको समझ नहीं सके कि क्या है, इत्तबा क्या है, ईमान क्या है, अज़्ज़रू क्या है, नसरूहु क्या है। We were not able to understand this. Friends, this is no
चॉकलेट खा के, हलवे खा के, उमरा को जाके आके वो अलबेक खा के बहुत अच्छा है खाना बोल के टोपी दाढ़ी छोड़ने का मजहब नहीं है। दिस इज अ डेंजरस मिशन। وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. The Quran, Allah subhanahu wa ta'ala warns you, brothers, this is no easy task. इसके अंदर आना हो तो तैयार हो जाइए। किसके लिए? खौफ के लिए। You will be put through very, very scary situations. डर के मकामात से आपको गुजारा जाएगा। वल्जुई, भूख, खाना नहीं मिलेगा आपको, पानी नहीं मिलेगा, संभालना पड़ेगा आपको। क्या आप तैयार है रसूल के पीछे चलने के लिए? भूखे, धूप के अंदर, सूखे, नो वाटर, thirsty, against a very, very large army that nobody ever believed that they can be defeated. कोई नहीं सोचा था मक्को बाउन बहुत बड़े वो दल, ये दल, क्या मुश्किल है, हमें लड़ नहीं सकते, क्या कर सकते हम? This is a very, very, very difficult task. This is about going straight into the lion's den. This is about going and disturbing the hornet's nest. हिजरत से पहले मक्के के लोग, मदीने के लोग, औस और खजरज के लोग आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और अहद किया। They said, we believe you as a prophet. Why don't you come to Medina? We will take you there. हम आपको मानते हैं, हम आपके पीछे चलेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चचा थे हजरत अब्बास. He was not a Muslim by then. He got up and said, औस और खजरज के लोगों, क्या मजाक कर रहे हो ईमान का? आपको मालूम है ईमान का मतलब क्या है? ईमान का मतलब यह होगा कि तुम्हारे बीवियां बेवा हो जाएंगे। तैयार हैं क्या? कि तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। तैयार हैं क्या? ये मत कीजिए कि मेरे भतीजे को आप मदीना लेके जाओ और फिर हाथ दे दो। डर जाओ, भूख लगी, सोच लगी, खौफ आया, वनक़्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुस, घर चले गया, जगह चले गई, बिजनेस चले गई, डर को छोड़ डाले ना। चुनाचे going through these difficult times, the Quran repeatedly reminds the good people, فَخَطَّبَ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ. It remembers the Sahaba and the Muhajirun and the Ansar in beautiful ways. वो लोग ऐसे थे कि नबी का साथ दिया, इत्तिबा की नबी की। कब? फी साअतिल उसरती, इन डिफिकल्ट टाइम्स। अच्छा, जमजम पी को, खजूर खा को, हलवा, क्या वो अजवा खजूर खाने सब भी रेडी हैं? सब रेडी हैं उसके लिए। फी साअतिल उसरती, when times become difficult, are you ready? That is the question. And therefore you will see repeated descriptions of this in the Quran. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. If your fathers, your children, your wives, your brothers and sisters, if your businesses, if your money is more important to you then the task that Allah gives, the purpose that Allah gives, कि नबी के पीछे जाओ, فَتَرَبَّصُوا, wait till Allah announces His judgment on you. It's a warning to Muslims. It's a very serious matter what the prophetic mission is all about. चुनाचे फिर कहा, वो जो नेक लोग थे जो नबी के पीछे चले, उनका जो डिस्क्रिप्शन कुरान में आया वो क्या था? فَالَّذِينَ هَاجَرُوا, they were people who left their homes. وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ, they left their homes, they were removed from their homes.
for their iman, because they had to follow the Prophet. It was not easy. فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا, तकलीफें उठाई, भूख संभाला, पसीना आया, तकलीफें हुई, जान गया, बिजनेस गया, मारा खाए, वखातलू वखुतिलू, मारे और मरे। ईमान, रसूल के पीछे चलना। चुनांचे वो लोग जो दुनिया को प्रायोरिटाइज करे, प्यार है तभी कोलेस्ट्रॉल कम कर को 100 साल जीना, दैट इज ऑल आवर लाइफ इज अबाउट। कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, अंडा देख तो खाना, पीला खाती कि सफेद खाती, बच गए तो बस। दिस इज ऑल आवर इंपॉर्टेंस इन लाइफ इज। मुझे वो घर छोड़ नहीं सकता, मैं बाकी का सब छोड़ सकता हूं। मुझे बीवी बच्चे बहुत पसंद हैं, उसके बाद में मैं आता हूं मस्जिद को, अल्लाह रसूल के पास। They kept giving excuses. We don't have too much time, so I'm going to skip. कुरान में एक आयत है सूरह निसा में, अलम तरा इलल लज़ीना क़ील लहुम, आपने देखा उन लोगों को जब उनसे कहा गया कि नमाज पढ़ो और ज़कात दो, तो सब अच्छे मुसलमान बनकर बैठे थे। नमाज पढ़ो, ज़कात दो, सब अच्छे मुसलमान बनकर बैठे। फिर फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, जब उनको हुक्म आया अब निकलो बाहर, घरों के बाहर निकलो और अल्लाह का कलिमा ऐलान करो, कहा तो अच्छा था ना, हज उम्रा नमाज रोजा ज़कात रमजान बहुत अच्छा था सब हमारा इस्लाम, अब ये कई को मुसीबत हमको डाला, लिमा कतबता अलैनल क़िताल लौला अखरतनी इला अजलिन क़रीब। Why don't we postpone all these ancient things? Tell me on dua to read, यार, it will become so easy. मैं दुआ पढ़ूंगा। कोई तस्बीह है, कोई दुआ है बदर के बजाय, ओहद के बजाय, तबूक के बजाय? Why don't we? पैसा पूछे तो छोड़ो साहब, कई को लड़ती, पैसा देना नहीं चाहते हैं आप, ईमान का दावा करते हैं मगर शॉर्टकट मारना चाहते हैं। लाकिन लज़ीना आमनू, लाकिन रसूल वल्लज़ीना आमनू, रसूल और ईमान वाले लोग ऐसे नहीं हैं। जब आयत आती है कि उठो, दूसरे लोग बहाना बनाते हैं, नहीं जरा हमारे घर में शादी है, नहीं हमारा जरा बिजनेस है, नहीं अभी मेरा बेटा मेडिकल को जमा है, नहीं अभी ये टेंशन है। नो, दे डोंट गिव एक्सक्यूजेस व्हेन अल्लाह एंड हिज रसूल कॉल, उसके जवाब में पीछे जाते हैं। आज दुनिया के अंदर कहां इंसाफ, नफरत की आग लगी हुई है, इंसान इंसान का दुश्मन बना हुआ है। एग्जाम में लूटी, चंदे में लूटी, सब चोरी, चंदा चोरी, एग्जाम की चोरी, मार्केट में चोरी, स्टॉक मार्केट में चोरी, कितनी 15 लाख करोड़ की चोरी, क्या मजाक है। अभी मैं बेलगाम से आ रहा हूं, मुसलमानों की हत्ती होले बोलकर एक जगह है, 40 घर हैं वहां, 40 फैमिलीज हैं। उनकी सूरत अगर देख लिया, मेरे पास वीडियोस हैं, आकर देखिए, अभी संडे गया था। मुसलमान मुसलमान नहीं रह सकता है। वो औरतें कहती हैं, सर हमारी इज्जत हम छुपा नहीं सकते हैं। They cannot even pass urine without being seen by the public. These are your sisters and your mothers. ऐसी हालत है एक तरफ। मेरे हाल, इस हालत में आप देखते हैं कि एक तो बेकार की पब्लिक है जो कमेंट करती है, न्यूज़पेपर पढ़ती है, व्हाट्सएप पढ़ती है, और दूसरी तरफ मुसलमान हैं। The Muslims have corrupt politicians as leaders, has an extremely jahil leadership. मुसलमानों की लीडरशिप ने ना कुरान मालूम, ना हदीस मालूम, ना इंग्लिश मालूम, ना उर्दू मालूम, ना अरबिक मालूम, ना कन्नड़ी मालूम, ना मलयालम मालूम, ना बात करने का सलीका है नादानों को, और वो लीडर बने बैठे।
जोरदार बने बैठे हैं और मासेस लोग इतने भोले, एक अय्यम में दिखाए तो पूरे अल्लाह का रसूल और नाम ले लिया तो पूरे पैसे वहां डाल देते हैं, थोड़ा हो कोई ऐसा वीडियो छोड़ दिया तो पूरे वहां हो जाते हैं। अकल नहीं, समझ नहीं, किसी मुसीबत है। और एक ऐसी खास मजहबियत हमारे पास आ गई है जो मिशन छोड़कर बाकी सब चीजों पर हम डिबेट और डिस्कशन करेंगे। ये सारी चीजें जो दुनिया में हम देखते हैं, इसकी बुनियाद एक ये है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को भूल गए कि वो किस लिए दुनिया के अंदर इतनी जद्दोजहद की, क्यों इतनी कुर्बानियां दी थी, व्हाट वाज इट। एंड लाइक आई सेड, everybody pretends to love the prophet. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह बहुत, मगर nobody loves the mission of the prophet. इंसाफ के खियाम को लियखूम अन्नास बिलक़िस्त, नो 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 नो, ये सब बातें काहे को टेंशन देते आप। ये कुरान की बातें क्यों आप टेंशन देते, क्यों आप बदर और रहत की बातें करते हो, क्यों आप माइग्रेशन की हिजरत की बातें करते हो, क्यों आप पैसे देने की बातें करते हो। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन युदाइफ़ु लहू व लहू अज्रुन करीम। कौन है आप में से जो पैसा दे नबी को, है क्या कोई कर्जा देने वाला। जमा जमा के हम रखे हैं मगर उस मिशन के लिए पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, एक मीडिया हाउस खोलने के लिए तैयार नहीं है, एक रिसर्च सेंटर खोलने के लिए तैयार नहीं है, एक जर्नलिस्ट को स्कॉलरशिप देने के लिए तैयार नहीं है। वी डोंट वांट टू डू दिस। So what have we done? Because we want to love the Prophet without the difficulties associated with this. What do? We have turned the love of the Prophet into a comfort pill, coated with love. मुश्किलात हालात में हम जाना नहीं चाहते हैं, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पसंद करना चाहते हैं, उसका सेवा अदा करना चाहते हैं। भेजो, दरूद भेजो, आंखों को चूमो और प्यारा भेजो, सब करो। और बाल जरा लंबे छोड़ लो, हेयर स्टाइल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिए आपको, लिबास में वो चाहिए, हिजामा करवाओ और ब्लैक सीड क्या बोलते हैं उसको, कलौंजी, रखम रखम से खाओ पियो, यही है ना सुन्नत रसूल। ऊंट पर बैठो, ऊंट का गोश्त खाओ, 3 उंगलियों से खाओ, बैठकर पानी पियो और हिफ्ज और तजवीद और उम्रा और हज और लिबास और टर्बन और दाढ़ी में मुलविस रहो। दुश्मन, काफिर, फितनेबाज दुनिया में दम मराते हुए फिरे, हमको क्या इससे लेना देना भाई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी के पीछे जो लोग चले थे वो ऐसे नहीं थे। लाकिन रसूल वल्लज़ीना आमनू माअहू, दे वर नॉट गिविंग एक्सक्यूजेस। ये शेवा नहीं मचा रहे थे बल्कि अपना जान, अपना माल, अपना सब कुछ डाल दिया, अपने बिजनेस छोड़ दिए, अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपने बीवियों को छोड़ दिया। जंग बदर में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फर्जंद कुफार में शामिल थे। हजरत अबू बकर इधर लड़ रहे थे। बाद में ईमान लाने के बाद बेटे ने बाप से कहा, अब्बू आप मेरे तलवार के बहुत करीब आए थे कई बार, मगर मैं मारा नहीं आपको। हजरत अबू बकर ने कहा, अगर तू मेरे सामने आता तुझे कत्ल कर देता, तू मेरे सामने आता तो कत्ल कर देता। ये जंग हक व बातिल की है। युरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक़्क़ व युबतिलल बातिल। अल्लाह ताला का यह इरादा है। जंग बदर के ताल्लुक से सूरह अनफाल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह का यह इरादा है कि हक को हक साबित करें, बातिल को बातिल साबित करें, झूठ को झूठ, सच को सच। एंड दैट इज द रीजन। ये फुरकान,
ये जिम्मेदारी है मुसलमानों की, ये जिम्मेदारी है अंबिया की कि इस दुनिया के अंदर जाओ, इंसाफ का ख्याम करो, मार्केट में इंसाफ का ख्याम करो, कोर्टों में इंसाफ का ख्याम करो, पार्लियामेंट में इंसाफ का ख्याम करो, घरों में कितना जुल्म हो रहा है बच्चों पर, कितना जुल्म हो रहा है औरतों पर, कितना जुल्म हो रहा है मर्दों पर आजकल के लॉज के साथ। हमना क्या, पानी बराबर नहीं है, हवा बराबर नहीं है, सब में पॉइजन। हमना क्या, खाओ मरो, हम पढ़ते रहेंगे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो दुनिया हमने समझी है हमारे दीन को, हमारे मजहब को, ये हमारे लिए एक बहुत सैड चीज है। अगर वाकई ईमान और ईमान का तकाजा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान और ईमान के तकाजे आप जानना चाहते हैं तो इन सूरतों का मुतालिया कीजिए, मुसब्बिहात का। स्टार्ट फ्रॉम 57, स्टार्ट फ्रॉम 57 एंड गो टू 64। आप देखेंगे अल्लाह ताला पूछते हैं मुसलमानों से, वमा लकुम, क्या क्या मामला है, ला तुमिनून बिल्लाह, तुम्हें अल्लाह पर ईमान नहीं है, ऐसे आराम से बैठे हो, डरपुक हो, पैसा नहीं देते हो, व्हाट इज द मैटर विथ यू, ला तुमिनून बिल्लाह। और उसी सूरत ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू तक़ुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से तक़वा इख्तियार करो और रसूल के पर ईमान लाओ। ईमान वालों से कहा जा रहा है, आप ईमान नहीं रखते अल्लाह पर, आप ईमान नहीं रखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इसलिए कि आप पैसा नहीं देते, इसलिए कि उनके पीछे उन मुश्किल हालात में नहीं जाते। यू डोंट बिलीव इन द प्रोफेटिक मिशन, यू वांट इट इजी, यू वांट इट कंफर्टेबल, यू वांट टू गो इनटू जन्नत जस्ट लाइक दैट। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, डू यू थिंक you will enter Jannah just like that? Being a software engineer, being a doctor, building your houses and marrying and eating good food and eating all the shawarmas and the biryanis, Bismillah बोल को खा लिया तो जन्नत चले जाते? Is this what we are thinking? Is it so easy? Is Jannat for scared people, for कंजूस people, for bakhil people, people who don't have any energy? बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़ ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुल करीम बर्रुर रऊफुर रब्बुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द अर्सलना रुसुलना बिल बय्यिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त वअंज़लना अल हदीद फ़ीहि बअसुन शदीदुन व मनाफ़िअु लिन्नासि व लियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल ग़ैब इन्नल्लाहा क़विय्युन अज़ीज़। व क़ाल अल्लाहु तआला इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अद्ल वल ईताइ ज़िल क़ुरबा वल इहसान। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदली व ईताइ ज़िल क़ुरबा वल इहसान यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह व यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला आला व अकबर।
वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। वक़ीमुस्सलाह।